No, I don't think. Obviously, Rohit Sharma is our captain and is the captain of the Indian team as well, as we all know. He's a super player. So obviously, ups and downs come in everyone's career. So before that, he scored a half century, and obviously he's in good touch. So I don't think it's a concern for us or anyone. I know the way he bats still in the nets, it's amazing, and I know it's just a matter of one innings or another, and I know he'll get back in form. No, it's nothing like that. Obviously, whenever we play a match, so there are pros and cons regarding it. So we cannot take anything for granted. So if we know we are getting, like for the past two matches, we got a chase 200. So obviously it's a little bit matter of concern. But obviously we just whenever we have our meetings, so I think the bowlers will execute it well and they'll come back stronger. Like we have a good faith on them, and I know they will do well. And obviously our batting, talking about our batting lineup, it's also good. So I hope it also goes well. Obviously, I mean Rohit Sharma is a super player. So as I told you before as well, that it's just a matter of an innings or two. So I know he'll do well. He's a fabulous player. He's a captain, and if we look at the records, he's the one who always stood up when we were under pressure. So he played those innings when we needed to win a crucial game or we needed to win the finals. So he's the same Rohit Sharma still. He's the same guy who is still in the team, and he'll definitely do so. He's a really good man, and I'm sure he'll do that well. Yeah, so talking about Surya Kumar Yadav, as we all know, he's a 360 degree player. So I think like when we all see him play the matches, so the thing that he does the same is that the way he plays in matches is the same way he does practice. So he doesn't do anything differently. So that this thing has already, it comes naturally to him. Whichever shot he plays, we think like, wow, what a shot. But it whenever he plays it, it just comes natural, and it's just like embedded in his body. So he just goes with the flow. For us it's like really difficult shot, and for him it's like a shot which he plays daily. So yeah, he's obviously a class player, and as we all know, he's the number one T20 batsman, and we obviously he gives us really good tips and we learn from him a lot. जी बिल्कुल, आप ये जो बात करो बिल्कुल सही है कि हमने पिछले मैच में भी 200 प्लस चेस किया। तो एक्चुअली हमारी बैटिंग लाइनअप आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी है। जो हमारे प्रैक्टिस मैचेस भी हुए थे उसमें भी हमने काफ़ी अच्छे रन्स किए। हमने 200 अगर एक टीम ने किए तो दूसरे टीम ने वो 200 चेस भी किए हैं। तो हो सकता है कि वो जो हम सब बैट्समैन की फॉर्म वहाँ से बरकरार रही है, और उसी जो प्रैक्टिस मैचेस हुए तो उसने हम सबको कॉन्फिडेंस दिया है। तो और वो फिर एक इम्पैक्ट प्लेयर का भी जब से रूल आया है, तो एक बैट्समैन ऐड हो जाता है आपकी टीम में, तो वो एक आपके ऊपर वाले बैट्समैन को एक फ्री मतलब हैंड दे देता है अपने शॉट्स खेलने का। तो ऑब्वियसली एक इम्पैक्ट रूल एक गुड अच्छा रूल है कि आप फ्रीली खेल सकते हो। और नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि एक बैट्समैन जब कम होता है तो टीम प्रेशर में आ जाती है। तो ऑब्वियसली ये है कि इम्पैक्ट प्लेयर ने ऐसा, अगर आप देखो कि काफ़ी आईपीएल गेम्स काफ़ी क्लोज गई हैं, तो इट्स अ गुड थिंग। एंड ऑब्वियसली ये हमने हमारी टीम को काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया है। वी आर कॉन्फिडेंट कि हम आगे भी करते रहेंगे। तो जी हाँ, अगर आप बात करें तो आर्चर भी ही इज़ मतलब वर्ल्ड के नंबर 1 बॉलर हैं। तो एक दो मैचेस में अगर वो थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म नहीं भी किया, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे वाले मैचेस में भी नहीं करेंगे। और हाँ जी, जो बाकी बॉलर्स हैं अगर उन्हें भी मार पड़ी है, वो कोई बात नहीं, वो अभी यंगस्टर्स हैं मेरे जैसे मैं भी यंगस्टर हूँ। तो हमारे लिए एक नई लर्निंग है ये, तो हम भी जल्दी सीखेंगे इससे। और मेरे हिसाब से जी क्या कहते हैं, जो नए यंगस्टर्स आए हैं तो वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने प्रैक्टिस मैचेस में बहुत अच्छा किया है, और जैसे जैसे ये मैचेस और खेलते रहेंगे उन्हें एक्सपीरियंस गेन होगा और वो अच्छा ही करेंगे। ये देखिए, अगर कोई बॉलर है तो फिर आप ये नहीं कह सकते कोई पहला मैच है या दूसरा मैच कि उसको डेथ में नहीं डलवानी, कि नई बॉल नहीं डलवानी। अगर मैं मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हूँ तो ये नहीं है कि मेरा फिक्स 2 डाउन है या मैं 3 डाउन नहीं जा सकता, 4 डाउन नहीं जा सकता। ऐसे ही सेम बॉलर का भी है। तो हम ये नहीं कह सकते कि उसको पहला ओवर क्यों डलवाया लास्ट। अगर आप एज अ बॉलर खेल रहे हो तो आई थिंक आपकी ड्यूटी है कि जब भी कैप्टन आपको बॉल दे आप तब बॉल डालो। आप उसको, आई डोंट थिंक कोई ऐसा एक्सक्यूज़ लेता है। तो और आप जैसे बात करो आकाश मदवाल की, जिन्होंने
डेब्यू किया आज और उन्होंने बहुत अच्छी बॉल डाली है। ऐसी पिचेस पे अगर आप देखें तो उनके बॉलर्स को भी काफ़ी मार पड़ी है, तो हमारे बॉलर्स भी मतलब उन्होंने थोड़ी मार खाई, पर अगर आप उनके भी रिकॉर्ड्स उठाओ तो उन्होंने भी मार खाई है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस लर्निंग्स की बात होती है। और आई डोंट थिंक कि हमारे कोई ऐसे इसको एज एन एक्सक्यूज़ देते हैं, सब लर्न करते हैं। और अर्जुन की जैसे आप बात कर रहे हो, अर्जुन बहुत एक मेहनती लड़का है। मैंने अपनी लाइफ में आज तक जितने भी क्रिकेटर्स देखे हैं वो वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग लड़का है ये, और ये बहुत अच्छा बॉलर है। और वो तो जैसे सिचुएशन होती है, टीम मैनेजमेंट जो भी डिस्कस करती है हमें नहीं पता, तो आगे अगर उसको जब भी मौका मिलेगा मैं भी बहुत श्योर हूँ और पूरी टीम मैनेजमेंट भी बहुत श्योर है कि वो अच्छा ही करेगा, क्योंकि वो लड़का बहुत मेहनती है और बहुत अच्छा है।